topic of my today's discussion is silence is golden. અહીંયા આવીને વાત કરવાનું થાય એટલે એવું થાય. સાયલેન્સ ઇઝ ગોલ્ડન ઇઝ અ પરમ સૂત્ર. સુનૃતમાં એ આવે છે કે સાક્ષાતનો મહિમા નિરંતર ગાવો. એટલે બહુ પહેલાં ઇન ધ બિગિનિંગ જ્યારે ફર્સ્ટ સાધક સભાનું એ છે ને એક મેરાથોન થયેલી, શિબિર થયેલી, કેતનભાઈ વેર દેર. દિનકર અંકલના જે બફેલો ગ્રોવના હાઉસીસ હતા એમાં એ શિબિર થયેલી. 3 દિવસની કન્ટિન્યુઅસ શિબિર હતી અને એમાં વેદરસનું ટૉપિક હતું અને ઘણા બધા ટૉપિક્સ હતા અંદર. અને એ શિબિરમાં બહુ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈપ ઓફ સેટિંગ. દિનકર અંકલ હિમસેલ્ફ આસ્ક્ડ કે લેટ્સ ડુ ધીસ, લેટ્સ ટ્રાય ટુ ફોકસ on the core bhios and sadhaks and then we will slowly expand it out to other people, but people જેને સાધક થવું હતું, સાધુ થવું હતું, એવા લોકો માટે દિનકર અંકલ wanted to do that શિબિર. અને એમાં મેં દિનકર અંકલે પણ કહેલું કે દિનકરને પ્રાર્થના એવું કહેલું, પ્રાર્થના કરેલી કે દિનકર અંકલ અહીંયા આગળ સાક્ષાતનો મહિમા નિરંતર ગાવો, પણ મને ખબર નથી હું કેવી રીતે મારથી કદાચ નહીં થાય. કે આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એક્ઝેક્ટલી વોટ આઈ સેડ, પણ દિનકર અંકલ સેડ કે ગાવો એટલે બેટા જીવવું. કે હા એ થશે દિનકર અંકલ, પણ પોઈન્ટ બિંગ ટુ કમ એન્ડ ટોક ઇટ્સ અ ચેલેન્જિંગ થિંગ ફોર મી. પણ કેવું છે કે અમિતભાઈ એકવાર જોક હતો, એક ભાઈ હતા રમણીકનો એક દીકરો હતો ગટ્ટુ. રમણીકભાઈના એક બીજા મિત્ર હતા દિલીપભાઈ. તો દિલીપભાઈ રમણીકને પૂછ્યું, અરે શું રમણીક, ગટ્ટુ તો 6 વર્ષનો થઈ ગયો? તો કે હા. તો કે હવે તો બધું જ સરસ સ્કૂલમાં જતો હશે અને બધું રોજ સ્કૂલમાં જતો હશે અને બધું સરસ ભણતો હશે. અરે કે હોય કાંઈ, હજુ લખતા બોલતા તો આવડતું નથી એને, તો શું કરશે સ્કૂલમાં જઈને? ધ પોઈન્ટ બિંગ દેટ કે સ્કૂલમાં જાય તો લખતા આવડે ને વાંચતા આવડે, ના ગયા વગર કેવી રીતે આવડે? એટલે જ્યાં સુધી જીવીએ નહીં ત્યાં સુધી ખ્યાલ ના આવે. ભાવેશભાઈ વાત કરી કે 10 વર્ષમાં પહેલી જે સ્પ્રિંગ શિબિર થયેલી સિરિયલબેની મોટલમાં, રૂમ નંબર 101, કલ્પેશ, રાઈટ? 104, the one next? 101, room number 101. That was the first shibir. Room 111, okay. Ratna. See, uncle, that's where I was starting. See, you remember very well. અને ત્યારે દિનકર અંકલ એમ કહેલું કે 10 વર્ષમાં તમે જોશો, અને 10 વર્ષ થઈ ગયા છે વાતને, કે કેવો ચેન્જ છે. અને there is a change. I wouldn't say, right, Bhaveshbhai? I mean, I know you were saying it that we want to see a better or faster change, and that's what we were saying at that time. We want to see something, But if we really compare ourselves from 10 years back to here, there is a change. I cannot deny that there is no change, because I would be saying that what Dinkar uncle has been doing is not working, which is not the case. That definitely is a change, and a huge change. Sorry, drop my notes. So there has been a change. But now the question is how to. Always the question has been to see it in a way we want. જ્યારે પ્લેન પહેલાં જઈએ ને તો ત્યારે ગ્રાઉન્ડ પર હોઈએ, કોઈ પણ જર્ની કરવાની હોય. સો વી પ્રિપેર, પેક, પીપલ વિથ ટ્રાવેલ એન્ઝાયટી, એ લોકોને જોવા જોઈએ. 2 દિવસથી બધું ચાલુ થઈ જાય. અને શિબિરમાં જવાનું હતું તો અમે લોકો બુધવાર આવવાના હતા અને વિજય ગુરુવાર આવવાનો હતો. વિજયની બેગ મંગળવારે પેક થઈ ગયેલી. એન્ઝાયટી નહીં, પણ એટલે એમાં એનો ઉત્સાહ હતો. અમુક જણ એન્ઝાયટી હોય તો આખી રાત સૂવે નહીં કે કાલે જવાનું છે, પ્લેન પકડવાનું છે, આ છે તે છે.
પણ there is some sort of preparation while you're on ground. જે કસ્ટમ ક્લિયરન્સ થઈ જાય ગેટ પર કે હા પતી ગયું હા સરસ. હવે પાછું જ્યારે ગેટ પર આવી ગયા પછી બોર્ડિંગ વખતે પાછું ચાલુ થાય. અરે અંદર મારી વુડ આઈ ગેટ ધી ઓવરહેડ રૂમ, મારી બેગ ઉપર જતી રહેશે કે નહીં જાય, એની બધી ચિંતા થવા માંડે. અને એના માટે પાછા લાઈનમાં ઊભા રહી છે. પછી બોર્ડિંગ ગ્રુપ પ્રમાણે થવાનું છે, તમે આવીને ઊભા રહ્યા છે એ કંઈનો ફાયદો નથી. અને તમે ટિપિકલી જોઈએ ને તો ઇન્ડિયન જે ફ્લાઇટ્સ હોય ને એમાં હોય હું તો બહુ કન્ફ્યુઝ થઈ જાઉં, કારણ કે બધા જ આવીને ઊભા રહી ગયો એટલે કે આ લાઇન છે કે નથી કે શું છે ખબર નથી પડતી અને ગ્રુપ પ્રમાણે બોર્ડિંગ ચાલતું હોય. અને આપણે તો લાસ્ટ જતા હોય પણ કારણ કે ડિંકલે કહેલું કે ધ નિયમ કે ઓલવેઝ બોર્ડ લાસ્ટ, એટલે આપણે બેઠા જ હોય પણ બધું જોઈએ આમ કે શું ચાલી રહ્યું છે બધું. બધા એકદમ અહીંયાથી અહીંયા આમ પણ આમાં ઊભા રહી જાય. 1 સેન્ટીમીટરમાં 10,000 માઇલ જવાનું છે, યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ ગેટ એનીથિંગ. પણ એટલી બધી ચિંતા. પછી પ્લેનમાં બેસીએ એટલે રનવે પર આવીએ. રનવે પર એટલે જ્યારે પ્લેન સ્પીડ પકડે ને ત્યારે જોવા જોઈએ વાઇબ્રેશન્સ આર ઇવન દે સે મેક શ્યોર યોર સીટ બેલ્ટ્સ આર ઓન, the overhead bins are closed, don't try to get to your stuff because it's very risky. Super turbulence, super vibration ચાલતા હોય. અને જ્યારે વાઇબ્રેશન ત્યારે પેલા ઘણા લોકોને હે બાપા હે કાકા ઘણા બધા એવા પણ આવતા હોય. અને પછી જ્યારે ટેક ઓફ થઈ જાય પછી ધેન ઇટ્સ અને વાઇબ્રેશનમાં એક દેર ઇઝ એક્સલરેશન ટુ કે ઓ યા ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ એક્સાઇટિંગ મોમેન્ટ એન્ડ ધેન વેન યુ ટેક ઓફ ધેન ઇટ ઇઝ અ સ્મૂથ સેલ. અને પછી પાછું ટર્બ્યુલન્સ વચ્ચે અમુક વાર આવે વેધરના હિસાબે ક્લાઉડ હિસાબે, ત્યારે પાછું એમાં ભાવેશ છે ને એકવાર સૂઈ ગયેલો. ભાવેશનું છે ક્યાં છે ભાવેશ છે, અમે એકવાર જતા હતા. ભાવેશ એટલે ટ્રુ કાકાજીના સન કે બાપુના સન કે મેં કિસકી ઘરવાલી. એની સીટ હતી ઇકોનોમી ક્લાસમાં, અમે સાથે બધા હતા. કે મજા નથી આવતી સુવાની, બહુ ટ્રાય કરી આમ એક સીટમાં આમ ગુટિયું વળી ગયો અને આમ બધું જ ટ્રાય કર્યું કે કેમ સૂઈ જવાય, કંઈ થયું નહીં કે જવા દે હવે. તો જઈને બિઝનેસ ક્લાસમાં જઈને સૂઈ ગયો સીટ ખાલી સીટ પકડીને. પછી ઓલા એર હોસ્ટેસ આવી તો ઓલું ઉડીને સૂઈ ગયો, ખોલે જ નહીં કે મને ખબર છે આવી પણ ખોલવું તો જોઈએ ને મારી આગળ. ઓલી સર કરે જતી રહી, પછી કેટલી વાર ઊભી રહે. પણ ભાવેશ પછી એમાં થયું શું, એક બહુ જોરદાર ટર્બ્યુલન્સ આવ્યું તો ભાવેશ કે હે કાકા ઊભો થઈ ગયો. પણ એવા પણ ટર્બ્યુલન્સ આવે. તો પોઈન્ટ બિંગ કે જ્યારે સત્સંગમાં આવીએ ત્યારે એક જોશ હોય, દેટ્સ આર ટેક ઓફ પીરિયડ. એની પહેલાં બધી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય, પછી ટેક ઓફ આવે ત્યારે એકદમ જોશમાં ચડે ત્યારે આપણે વી ટેક પછી વી આર સ્મૂથ સેલિંગ. એટલે લાગે સારું કંઈ બધું બહુ બોરિંગ ચાલે છે કે ખબર નથી શું થઈ રહ્યું છે. બટ યુ આર એકચ્યુઅલી કટિંગ ડિસ્ટન્સ. વી ડોન્ટ નો દેટ વેન યુ આર going in the flight and when the plane is moving we are cutting distance. It's not that we are not moving, so we are cutting distance. And then when turbulence comes ત્યારે એકદમ we get shake up. અરે યાર આટલું બધું આપણે સરસ હાઇટ પર આવી ગયા, હજી શેકઅપ કેમ થયે છે? બટ ટર્બ્યુલન્સ છે at a height of 30,000 feet. There is even a minor disturbance in wind can cause a problem. So we have to understand the process. And then eventually the turbulence goes away and then again smooth sail and then we are happy. But I think Bhavesh bhai, to your point, is to understand the process, and to be not frustrated or shaken up or scared or anxious about it, but just to understand the process. And one funny joke again, thinking of Vibhanti when she was saying, JB, this is not for you, but there was Sankalp told us this joke. એક બે લવર હતા, જિગ્નેશ અને જિજ્ઞા. એન્ડ જિગ્નેશ કે તું કેટલો પ્રેમ કરે, મને બહુ જ તને પ્રેમ કરું, તારા માટે આ કરું તે કરું, બધું જ આખી જે હિન્દી બોલિવૂડનું બધું જ કહી દીધું એને, હું આ કરી આપું. પછી જિજ્ઞાને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ હતો અને ડૉક્ટરે કહ્યું કે તમારે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું છે અને વેન થ્રુ સર્જરી. અને સર્જરીમાંથી બહાર આવ્યા જિજ્ઞા. અને જિજ્ઞા એકદમ આમ કે જિગ્નેશ
જિજ્ઞેશ ક્યાં છે? તો એના પપ્પાએ કહ્યું કે તને શું લાગે છે, તને તારું હાર્ટ તને કોને આપ્યું? તો એકદમ ધ્રાસકો રડવા માંડ્યો. અરે બાપરે! તો પપ્પા કે ગાંડી થામાં જિજ્ઞેશ અંદાજ ગયો છે. એટલે આપણે શું માનીએ કે આવું જ આપણા વિઝનથી આપણે જોઈ લઈએ કે આમ છે. એટલે જ્યારે સ્વરૂપ કરતા હોય તો આપણે માનીએ કે આપણે કરી લઈએ છીએ. ગાંડા થવા જેવું છે નહીં ભાઈ, ભગવાન કરે છે એનો. એના માટે રડવું કે હરક કે શોક રાખવો નથી એનો. કાલે વિભાંટી વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ દેટ પ્રસંગ કે પેલું ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ કૂતરો બુલક નીચે જાય કલાય કે હું ભાર ઉચકું છું ભાઈ, 4 પૈડા છે, બુલક છે, બધું છે, તું તો કંઈ નથી કરતો, વચ્ચે આવતો હોય સીનો. પણ we want to rely on the Swarup. And yesterday's topic was about Swarup Nishtha. અને દિંગરન બહુ સરસ વાત કરી ગઈ કાલે કે ગુણ બુદ્ધિની ઉપરની સ્વરૂપ નિષ્ઠા, ગોઈંગ બિયોન્ડ ધ 3 મોડ્સ ઓફ નેચર. અને હી ટોક્ડ અબાઉટ કે જે સત્વગુણવાળા હોય એ કાં તો તમને કહેશે તમે ભગવાન છો, રજગુણવાળા હોય તમે કહેશો કે તમે ભગવાન છો, શું ચાલે છે આ બધું, વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, કોઈ પ્રસંગ ચાલતો હોય ત્યારે. એટલે અમે સુજીને બધા વાત કરતા હતા જનરલી આમ પહેલાં પણ, હ્યુમેનિટી એટ લાર્જ ઇઝ ગુડ એટ making someone God or believing in God or making someone evil or devil and hating devil, At large, we are very good at believing, at making someone God or believing in God. And in some cases, some people also become God, They think that they're God, Even good at becoming God, But it is very, very challenging to be really God's, to become His instrument or to become His devotee. And that is Gunatit, where they are the devotee of God, they are the instrument of God, they are the vessels carrying God. That is very challenging. And that was Kakaji Papaji. They became the instrument of Bapa and his work. When all this thing was going on, Jot bandhatu tu, ઘણું બધું ચાલતું હતું. I mean, the commotion, we could only imagine what that could be, at that time, અહીંયા આગળ એક નાનું વસ્તુ આમ શેકઅપ થઈ જાય કે આજે કિચનમાં પાઉંભાજી બનાવવાની છે ને પાઉં નથી મળ્યા તો આપણે કે શું કરીશું, હે બાપા, એવું થઈ જાય. આ તો કયા લેવલનું કામ ચાલતું હતું અને કેટલા બધા કમોશન આવતા હતા. અને એમાં નેચરલી ડાઉટ પણ થાય, આર વી ડુઈંગ ધ રાઇટ થિંગ, આવી કરવાનું છે. તો પપ્પાજી એવું કહેતા કે જો બાપાની મરજી નહીં હોય, કાકાજી પપ્પાજી એવું કહેતા કે બાપાની મરજી નહીં હોય તો હું ને પપ્પાજી પેલો શું કહેવાય કુલ્હાડીનો દસ્તો લઈને અમે આ જોતની દિવાલ અને ઈંટો ઈંટ તોડી નાખીશું. જો બાપાની મરજી ના હોય તો આ બાંધ્યું છે તો પણ we will break it down and crush it to rumbles if it was not Yogiji Maharaj's wish. And we only doing this to please Yogiji Maharaj. We only doing this because it's his work and his mission. It is nothing of our own. પપ્પાજી બધા એમ કે કાકાજી પપ્પાજીએ કાર્ય કર્યું છે, બાપાનો સંકલ્પ હતો આ. એ કોઈ સ્વતંત્ર અને કાકા પપ્પા કે બાપાથી અલગ પણ નહોતા, પણ એ હિસાબે બાપાનો પણ એ સંકલ્પ હતો. અને બાપાનો સંકલ્પ કાકાજી અને પપ્પાજી એને સાકાર કર્યો. એક કાકાજીના પ્રવચનમાં એક આવે કે સાધક કે કોઈ પણ ભક્ત હોય જ્યારે એની જર્ની પ્રમાણે ચાલતી હોય, જેમ ભાઈ વાત કરતા હતા અને આપણે ટર્બ્યુલન્સની વાત કરી કે એને પ્રસંગો આવવાના જ, બિકોઝ ઓફ ધી ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ ઇઝ સચ કે પ્રસંગ આવવાના. અને પ્રસંગમાંથી એને ઘણી બધી ટેકનિક્સ છે, એમાંથી પ્રસંગમાંથી ઉપર પણ આવે. Dingaranga talked about all those different techniques also. પણ કાકાજી said કે બાપાની કૃપાથી અમને એવું કંઈ લાગ્યું જ નહીં કે અમને આવ્યા જ નહીં, અને આવ્યા હશે તો આભાસ રૂપે જતા રહ્યા હશે કે થોડુંક કામ પ્લેનમાં બેઠા થોડુંક કામ શેક થયું અને આભાસ રૂપે જતું રહ્યું. અમને એવું લાગ્યું જ નહીં. પણ કાકાજીનું લાઈફ જોઈએ, કાકાજી પપ્પાજીનું લાઈફ જોઈએ, it was only hardships. It's challenge from a worldly perspective. First, father passing away at a small age. So they had to grow up. There was always shortage of money
and they had to grow up at their grandfather's place. Papaji and Kakaji had to separate because Papaji had to make money and Kakaji had to study. Challenge. From beginning, I'm talking about age, like, 6, 5, challenge. Then when they come back is to establish the business. Big challenge. कोई business चालू करे तो पूछी जो केतन भाई, भावे से पूछी जो, बेचारा हमने, I really admire him, the amount of perseverance he has for the new business he has started. Bebe वागे सुई रातना जागी ने website no new updates. It's a huge challenge to start any enterprise. Forget anything. कोई पण project ने करવું is a huge challenge. आज शिबिर નું પણ કરું, અમિત ભાઈ રાત સુતાર નથી હોય છે. It's a huge challenge. So it's a challenge to start that business. એમાં ખૂબ મહેનત કરી. પછી આવ્યું આખું નંદાજીનું against all odds. અહીંયા આગળ લાસ વેગસમાં એનું odds આવે તો 1 to 100 ન આપે odd. There is no chance for that, for the favorable result to come on our side. Again a challenge. And કાકાજી, આ બધી જ ચેલેન્જમાંથી કાકાજી પસાર થયા છે. This was before time. કાકાજી, પપ્પાજી both going through this. એ ચેલેન્જ આવી. પછી જે બિઝનેસ આટલી મહેનત તમે ઊભું કર્યું હોય, એ બિઝનેસને within a fraction of a second બાપા કે આપણે કરવા નથી આવ્યા, તો કરવા નથી આવ્યા તો કર્યું શું કામ? પણ બાપાની મરજીથી ચાલુ કર્યું અને બાપાની મરજીથી એને યાહોમ પણ કરી દીધું કે આને જવા દો પાણીમાં, કે આપણે 25 રૂપિયાનો વકીલ કરજો. And we know all the prasangs, and that to see that whole enterprise go down in water. આજે કેતનભાઈ 15 yearsથી બિઝનેસ કરે છે, કેતનભાઈ કે જવા દો આ પાણીમાં બધું. કેતનભાઈ તો જવા દેશે, પણ વી કેન રિલેટ કે જે બાપુએ કર્યું કે આટલા વખતથી જોબ કરતા કે આજે જવા દો, જોબની જરૂરત નથી. All these years we have been latching on to so many things, and to let go those things, the support, even though we say, Dingar uncle, we are yours, you're our guard, but we have so many support structures, and to let those support structures go and only rely on guard and Dingar uncle, that's a huge challenge. And it was so effort, and Kakaji said it was, हमने એવું લાગ્યું જ નહીં, કારણ કે they never considered any of that as a support structure for them or as something to support them. For them, Bapa and Yogiji Maharaj was the only support structure. So એ થયું. પછી 51 સાધુ કરો, બિઝનેસ ગયું, પછી 51 સાધુ કરો, એટલે એનું ચાલ્યું. ભણેલા ગણેલા નવ યુવા, કંઈ પ્રોજેક્ટ, કંઈ ટાસ્ક છે. સાધુ કોણ થતું હતું કે બધા જે વિડોવર હોય કે ઘરમાં કંઈ હોય નહીં, એવા બધા સાધુ થતા હતા એ ટાઈમે. એસ્પેશિયલી અક્ષરપુરુષોત્તમ સંસ્થામાં તો વિમુખ કહેવાય આપણે, એટલે there was no support at all. અને એમાં સાધુ કરવા અને એમાં ભણેલા ગણેલા. And at that time when India was going through a very critical change, India had just gotten independence, so there was a lot of patriotism, a lot of nation building was going on, and educated youths and educated every country and every nation banks on that we want these people, they are the ones that are going to carry the country forward in the next generation. So there's huge political and huge national thing going on as well. અને એમાં સાધુ કરવા, lot of criticism કે તમે અહીંયા આગળ સ્કૂલ બાંધો, build hospitals, let these guys, ડૉક્ટર સમિત ડૉક્ટર છો, અહીંયા ગામમાં લોકો મરે છે, સાધુ બને તમે શું કરશો આને? So a lot of criticism. Against all those criticism, make 51 dedicated youths which are totally divorced from the society, but yet working for the society, but divorced from the society, from their respective fields of proficiency. That was a huge challenge, and we saw in all the dramas where they were, Kakaji par apman, challenge. Then the Benos chapter, another huge challenge, cannot be said enough. Then the Vimukh Prakran, અને તારે શું કે the happiest day, એટલે કાકાજીનું લાઈફ જોઈએ તો ફિલ કમ્પ્લીટલી, કાકાજી પપ્પાજીનું લાઈફ જોઈએ તો ફિલ કમ્પ્લીટલી વિથ ચેલેન્જીસ. એ તો હરિધામમાં 30 સાધુઓ એક રૂમમાં, આનથી નાનો કદાચ રૂમ હશે, 39 saints living in that room. We can't conceive, and with one bathroom. We cannot think of those things, 20 benos living in Tardev. કાકાજી કહેતા કે આંબલીપુરમાં રહ્યા છો મારા ભગવાન, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ ક્યાં રહેતા? once Bapu was explaining, Kakaji was saying કે આવીને જોજો કે તમારા ભગવાન દાદુભાઈ કાકાજી ક્યાં રહે છે. કાકાજીમાં he was living in one room. આજે પણ કિશોરભાઈ માસ્તર છે ને, એ કાકાજીને લંડનમાં મળેલા, અને he was very impressed with Kakaji, and Kakaji carried himself in such a regal manner, and Kakaji was Raja Haridharaj, he was very impressed.
So when he came, and he was first came, he had not seen Kakaji in India. So when he first came, after Kakaji passed away, he thought Kaka, motu, saras, that would be big place, because Tagadi mission ma saras moti jagya ati, and he had been to different centers. And when he went to Tardev, and he was in tears, that this man who gave, he gave everything, every luxury can be ever thought of to everyone, he lives in this room. And his room was actually not even a bedroom. It was a kitchen. So he lived, the kitchen was remodeled into a room where Kakaji lived. But there was never, to those things, today, everyone works for those things. But it's easy for to say he's a Gunatit saint, so it didn't matter to him. But if you put ourselves and see him as with a human light, is that human himself is so amazing. Forget believing him to be divine, That human himself, it's beyond our recognition, And that's where Kakaji lived, And lost my train of thought. But in every aspect, there was no hardships. No, Kakaji kehta ke musibato, the difficulties lost color in front of us. Because we had Bapa with us, Because we have Dingaranga with us, that should be our attitude, that no difficulties, no challenges can ever hold any ground in front of us. I can say this very easily right now, with the best emphasis. But when the prasang comes, that's what we want to stand our ground, And it could be from any range, Once I asked Dingaranga that Nauma Prakran ni vato che, ema Bhagwan na time ma bada devotees છે રાજભાઈ અને બધા એકદમ અમેઝિંગ પ્રસંગ છે બધા કે આને અગ્નિમાં બેઠા પણ અગ્નિ શીતળ થઈ ગયો અને આત્મારૂપે એટલા બધા વર્ત્યા કે દેર ઇઝ નો એવા ઘણા બધા છે કે એનું ધામમાં ગયા રાજભાઈ તો છતાં એમની ચિતાને આગ લાગતી નથી એટલું બધું એમનું વૈરાગ્ય હતું. સો આ સિંગલ કે આત્મારૂપની વાત કરે છે હજુ અમારામાં તો એવું કંઈ દેખાતું પણ નથી. વોટ આત્મારૂપ ઇઝ ધીસ? ભગવાનના ટાઈમે આવા વાત અને અમે માનીએ છીએ કે આપમાં ભગવાન છે અને અમે એવી રીતે ડેડિકેટમાં અમારું શું લેકિંગ છે કે we don't even know this, So, but Bhaveshbhai, the point was that we have this fantastic examples in front of us from Kakaji's life, from God's time, all this, the history is full of this fantastic examples. But there are small things that happen with us that Dingarungal thinks is fantastic. So Dingarungal કહે કે જો તમે લોકો આટલા બધા ભાઈઓ એક સાથે આટલું બધું તમે you could have done anything, પણ તમે લોકો આજે અહીંયા એક રૂમમાં રહો છો અહીંયા આગળ એ પણ એટલું જ છે ને. Why don't you think that, So there is something, there is credit given. Okay. So today I was thinking કે ભાવેશભાઈ છે અહીંયા કિચનમાં બધું ચાલે છે, right? He is doing the room assignment. હવે room assignment કરવો હોય તો country can do it very well, right? They have a whole automatic system, right? CM uncle, people enter their thing and you'll have the keys, everything will be perfect. It's not a matter of room assignment. There are restaurants, like we have one in Omega, that run 365 days, 24 hours, that just run and they provide food with great service everywhere, But that's not what's happening in this kitchen here, It's not about what the action is. It's not about of what we're doing, but really our thinking, our bhavna, and our feeling. And that is amazing, It's not possible for someone to do that. It's not possible for this shivir to happen if that was not there. So it is there. It's just we are used to seeing fantastic things, and we fail to see splendor in the simplest things, And so that's one other thought I had. I should wrap up. Tulsi Ramji talked about simplicity, and Tulsi Ramji, I say, Bhagwan Swami should say, dharma ka mood ahimsa. Non-violence is the basis of all religion. That's how it's said in, that's the purpose of dharma. And you will be amazed that it's so hand in hand with humanity. If you see our evolution over from Stone Age, we have become
more and more a non-violent being, you know. That's what has been happening, you know, becoming more and more non-violent. We don't kill the guy next door anymore. We maybe try to bomb a nation next door, you know. But that's also changing, right? We're trying to get more and more treaties with our friendly nation. At least we're making sure that it's no point in fighting with the nation neighboring. So humanity has evolved to be more non-violent, and interestingly, that's what has been stated in the Hindu scriptures and what God endorsed, that dharma ka mood is ahimsa. So today, we are not bloodthirsty. We don't try to kill people. Not most of us. I would say majority of us are not that. But yet, there is some sort of violence that remains, and that violence, and again, I'm talking about in 5,000 years back, even, you know, that violence remained in the form of hurting someone by speech, by by action, you know, and that violence still remain, you know, and we do, and still that remains today, you know. So when we are thinking that the start of violence happens when when we have a negative thought for someone, that's when the first inception of violence happens. That negative thought becomes a word, an action, and to the last level that you can think of, you know. And if you think of, and I'm coming back the simplicity, right? Non-violence, and violence beginning with the negative thought. And if you think of the life of Bapa and Kakaji and Dingo Uncle, all they talk about is not to see negative. Okay, do everything that you can, how much ever you can, but do not do this. Do not see negative in a fellow devotee. And that's the beginning, right? That's your first circle. First they start, charity begins at home, right? So it's, don't see negative in the guy next door. Don't see negative guy who's living with you. Don't see negative in this congregation. And in general, don't see negative. And that God said that kusanginopan abhav nahi levo. Someone who doesn't even believe, doesn't have the same belief system as you, do not see negative in that. And that's the sort of the basis for even our satsang that's happening here. It's not something which is very esoteric, something which is very cultish. It's something very fundamental. And it's very important to realize what's happening here. It's very important to know what Dingo Uncle is trying to do. And if we measure ourselves with what he wants to do, more and more we will be in alignment, and more faster and faster would be our progress, you know. And Kakaji was called or claimed or titled as Nirdosh Buddhi Na Raja. So he was called as the king of faultless intellect, where he never ever had, or it never occurred to him to have a negative thought, you know, or to harm someone or anything like that, you know. So he, what the scriptures have said to be the basis of religion, he was claimed or titled as the king of that, you know. And Dingo Uncle, you know, being Kakaji's manifestation, he's the king of that as well. And Dingo Uncle explains that Kakaji was just not the king of Nirdosh Buddhi, he was a king maker. He would actually make Tulsi Ram to such a level that he will make other people like that, you know. That was the magnanimity of Kakaji, and that's the magnanimity of Dingo Uncle, that he is here making us those, or elevating us to that level where we can really become the instrument of their work, you know. I forgot to say something, but with Papaji, I never had a personal one-on-one interaction. Even though when we grew up, you know, we never had a one-on-one interaction. And it was in 2003 when we were going for the Murti Pratishtha મહોત્સવ થયો હતો ત્યારે મેં જવાના હતા. અને પપ્પાજી ત્યારે મૌન ધારણ કરેલું. He was not speaking. And I did not know that when I was going there. And I had thought કે આ tripમાં I want to get one incidence with Papaji, you know.
at least one prasang with Papaji. And so we went there, and I think the first thing was happening was, okay, he gave us all of us madas. And I think that's when Surad got the mada from Papaji, and and the whole thing started that Surad will become a sadhak because he also got the mada from Papaji. And we all have that cherished memory that with Papaji. And then what happened was, so I was happy. Okay, I got my one prasang. Then that following evening, Dingar uncle went to see Papaji, and I went with Dingar uncle. And Papaji was there, and the whole meeting happened. I was just there with Dingar uncle, and then we were leaving, and we turned our back and we were leaving. And the Beno said something bolave che. So I told Dingar uncle, Papaji bolave che, because I thought that's what he's calling. Dingar uncle ne tane bolave che. So then he called me, and then he gave me a rose flower. And I was so overwhelmed that here I had made a thought in America that I want to get an incidence with Papaji, a prasang with Papaji, and here he is responding to that. He called me and he gave me a rose flower, and then he patted my back, and he didn't say anything, and I just left, and he let us go, But Papaji, the silence is golden, If we had, those silent moments even with Papaji, they have become eternal for me, Is the way the Gurunath saints, they know how to touch the soul, So there was, I think, was one personal prasang I had with Papaji. Maybe I should wind up now. So last, it's also going into the next topic, Dingar uncle, that we were gonna request you, was on Karyani 10. It is said that Karyani 10 is because Kakaji's favorite Vachanamrut. And it talks about, its title as the one about one of austerities. It's an amazing Vachanamrut because God has assumed sickness. He has fever, and he's talking about intense austerities. Normally when someone is sick, they want to be, taken care of their body, because the body is kind of overwhelming. But God being God, he's talking about intense austerities. And then he talks about અને જો કોઈને અને એમાંથી અમે રાજી થઈએ છીએ. That's what Bhagwan said. I'm pleased with one who performs austerities. And I'm no way pleased as much by the person when he performs austerities. And then he said, but someone who believes God to be karta harta, completely the all-doer, on the same person, I am also equally pleased. And then God says that a person may become, a king, may become like a Brahma, or may become like one of the elevated saints, Sankadik jeva mota sant thai, ke Prakruti Purush jeva elevated entities thai. Pan chatai, and yet he doesn't forget his master-servant relationship with God that is most dear to them. And probably Dingar uncle explained once that Swami Sevak Bhav, that was the key that maybe Kakaji got out of that Vachanamrut, to have that Swami Sevak Bhav with our master. That was one thought. But Dingar, so today maybe you could bless us that first of all, our understanding in accepting that you are the all-doer, that everything that happens, not in my life, not in everyone who's sitting in the room, but in the entire cosmos, is you. And second of all, understanding your glory, being doing what you want us to do. May we never have lapse
in that master-servant relationship with you. And we pray that, Dingar Uncle, that we become really your, that's Kakaji used to say, ke tamara badad, and Sapan used to say, we just work here, we just work here. People come, why, this and that, and, there's a lot of input. We just work here, He is the one who is running the show for us, So we continue to have that, that goal and that zeal to please you and to do what you want us to do. And that's a prayer that, that you can empower us to do more and more and bless us to do more and more. Sajan Samaranija. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Tvameva Mata cha Pita Tvameva, Tvameva Bandhus cha Sakha Tvameva, Tvameva Vidya Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Je utpati sthiti laya kare vedo stuti uchare, Jenaro masuchidra ma anusama brahmanda koti fare. Maya kad ravi shasi suragano agnan lopekshana, Eva akshardhamna adhipati Sri Swami Narayana. Janiyamrutavani to vahirahi sakshat mahima rupe, Jani brahmi sthiti aholina kare subhavya aksharapade. Sharanagata nijalpa jiva sahuna shreyartha tatpara rahe, Kaka snehal sindhu divya vibhune hayyo to vandan kare. Jani vani vishe akhanda vehti suravali brahmani, Kintu thai agnyat alpa samipe rasbasahu mavadi. Jive je alamast swami sriji mache mokshadata vadi. Papa jogi swarupa vibhu charne jhuki rahu bhavati. Sajanand Swami Maharaj ni jai, Sarve Gunatit Swarupo ni jai, jai, jai. Pragat Brahma Swarup Kakaji Maharaj, Papaji Maharaj, Snehal Sindhu, Divya Bandhu, Shatabdi Parva Mahotsav ni jai, jai, jai. Pragat Brahma Swarup Hari Prasad Swami Maharaj, Atmiya Yuva Mahotsav ni jai, jai, jai. प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब संत आज्ञा पर्व महोत्सव नी जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। आज मैं हिंदी में बोलूँगा।
और हमारे विजया बहन है ना, उनको उधर से, इफ़ यू कैनॉट सी, यू वांट टू कम अप फ्रंट, यू कैन सी फ्रॉम देयर, ओके. इज दैट येलो कलर ओके और वी कैन चेंज द कलर? Okay. Sometimes that yellow color is not visible, as better as maybe some other colors, but okay. જેને કોઈને પાછળ, those who do not understand Hindi and those who wants to read the English subscripts, maybe you want to change your seats. Yesterday somebody was saying, in the game change your partners, But here we are saying, if you want to come closer, you can come closer. पिछले 3 दिन से हमारा शिविर का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है. शिविर के अंदर जब पहले शाम को जब बात करी थी और हमारे फाल्गुनी बहन ने वो अपने रूम में जाकर अप्लाई भी किया, 5 मिनट सब रिफ्रेश किया. हमारे तुलसीराम ने भी ऐसा किया. तो उनसे जो भी उनको फ़ायदा हुआ वो बताया आज. दूसरा, कल भी स्वरूप निष्ठा, आज्ञा या तो उपासना और आज्ञा का भी अच्छा टॉपिक निकला था. और उसके अंदर 1-2 सवाल बच गए थे. एक हमारा शंकर भाई का भी सवाल था, स्वरूप निष्ठा और सर्वदेशीयता, और दूसरा चंद्रकांत भाई का भी सवाल था. और आज होगा तो उसका थोड़ा अंदर करेंगे. मगर आज का टॉपिक ये है कि इस 2013 की शुरुआत से हमने सबको वचनामृत के बारे में सिलेक्ट करने का बोला है. एक वचनामृत आप लो और वचनामृत को हर रोज़ पढ़ो, और फिर जब काका जी की बर्थडे आएगी 12 जून या 21 जून के आसपास में, जो भी वो समय आएगा, उसके बाद बाकी के 6 महीने तक उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा बातें करेंगे. अभी आप पक्का करो, अभी पारायण करो, कंठस्थ हो तो कंठस्थ करो, और उसके बारे में कुछ सवाल हो तो वो भी क्लियर करो. और ये वचनामृत के अंदर हर एक ने अपने अपने आप का वचनामृत भी सिलेक्ट किया होगा. तो आज पिंटू भाई ने भी थोड़ा बताया, कार्याणी का 10 वचनामृत, नाड़ी देखने का, नाड़ी का मतलब है पल्स, और तप का वो वचनामृत है. वो बापू भी कहते हैं और भी कई लोग कहते हैं कि काका जी का वो बहुत प्यारा वचनामृत. कार्याणी 10 काका जी का बहुत प्यारा वचनामृत. और उसके बारे में जो काका जी ने ये वचनामृत को क्यों अपना प्यारा वचनामृत बनाया, उसके बारे में आज कुछ थोड़ा सा सत्संग करें. तो सबसे पहले कार्याणी 10 वचनामृत किसी और ने भी सिलेक्ट किया है भाई? कार्याणी 10 वचनामृत किसी और का भी सिलेक्शन है? एनीबडी हैज सिलेक्टेड कार्याणी 10 as your favorite vachnamrut to read? Nobody. धन्यवाद. आज हमारे अमित भाई पहले आकर मुझे बता रहे थे कि कार्याणी 10 के बारे में आज कथा वार्ता करना. राइट? यू केम बेटा? और एंड परीक्षित भाई केम ऑल्सो, एंड ऑल्सो पिंटू भाई.
mentioned also, you know. So let's first find out. परीक्षित भाई, आपका पेट वचनामृत कौन सा है? गडरा फर्स्ट 15, और उसका टाइटल ध्यान करने में कायर नहीं होने का। वो भी छोटा वचनामृत, अच्छा है वचनामृत। और हमारे पिंटू भाई, आपका क्या है? अभी सिलेक्ट नहीं किया है? अभी सिलेक्ट नहीं किया है तो आज हमारा पिंटू भाई कार्याणी 10 सिलेक्ट करे, ऐसी बातें करेंगे भाई? नहीं है? आ वचनामृत तो बहुत सारू रे। हाँ जी। जो परीक्षित भाई का वचनामृत है ध्यान का, वो भी वैसे उपासना का वचनामृत है। भगवान का जो भक्त है वो भगवान का ऐसा ध्यान करे, ऐसी भक्ति करे, उसमें कायर नहीं हो जाए। 1 साल लगे, 10 साल लगे, 100 साल लगे, उनसे भी ज़्यादा लगे, फिर भी कायर नहीं हो, टायर नहीं हो, रिटायर नहीं हो, एक्सपायर नहीं हो, जो भी बोलो। मीन्स उसका इतना लगन लगे कि उसके बारे में कुछ दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। वो उपासना का ही वचनामृत है। या तो स्वरूप निष्ठा का भी वचनामृत बोलो तो वो भी है, वही है। भगवान के अंदर ऐसी निष्ठा हो जाए, वो वचनामृत है। कल मध्य का 9 वचनामृत भी बता रहे थे कि वो स्वरूप निष्ठा का वचनामृत में, उसमें तो टाइटल ही वो, हेडिंग भी वो है, स्वरूप निष्ठा का है। कार्याणी का 10 का टाइटल है नाड़ी देखने का तब का, मगर उसके अंदर का जो एसेंस है वो भी उपासना का है, स्वरूप निष्ठा का है। और 273 वचनामृत में आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर हर एक वचनामृत को पढ़ेंगे ना, तो हर एक वचनामृत के अंदर से उपासना की बात निकलेगी, स्वरूप निष्ठा की कोई ना कोई तरह से तो बात निकलेगी, मगर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको वो खोजना पड़ेगा। अच्छा, ये वचनामृत का पहले पारायण करें, उसके पहले हमारे सत्संग में हमारे शंकर भाई वो स्पीडी टॉकर है, फास्ट टॉकर है। उन्होंने धन्यवाद हमारे शांता बहन को कि उनको समझ लेते हैं। मुझे भी शुरू में तो चैलेंज होती थी, उन्होंने शंकर भाई की बात एग्जैक्टली डाइजेस्ट करने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगता था, मगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं पूछ लेता था, या तो वो दूसरी बार रिपीट करते ही रहते थे, और दूसरे ऐसे हमारे फास्ट टॉकर हमारे पिंटू भाई भी दिखते हैं। उन्होंने पिंटू भाई का भी कभी कभी इतना स्पीडी होता है। और अभी पिंटू भाई ने जो कथा वार्ता करी उसके अंदर एक लवर और लवर, दो लवर की बात बताई है। उनका नाम सर्वांगी, यू रिमेंबर द नेम? है, यू डिडंट रिमेंबर द नेम? एनीबडी रिमेंबर द नेम इन द फ्रंट रो? है जिग्ना एंड Jignesh. Do you remember that name that he was mentioning? Okay. In their talk, the end statement, the last statement, was very touchy, important, and also humorous. And that was
Let me go a little bit in a repeat mode, in my slow method, so that maybe you all can catch it. And this time I will speak in English and Hindi both, नहीं तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा, वो इंग्लिश वाले तो उधर से पढ़ लेंगे, हिंदी में बोलूँगा। पिंटू भाई ने एक एग्जाम्पल दिया, एक स्टोरी बताई, दो एक दूसरे के प्यार वाले, इश्क वाले की। एक का नाम था जिग्नेश, दूसरा का नाम था जिग्ना। पहले तो मैंने सोचा कि भाई जिग्ना नाम है तो फिर भावेश का नाम क्यों नहीं बोलते हैं। मगर एंड में पता चला। तो जिग्नेश और जिग्ना एक दूसरे को बोल रहे थे कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। तो जिग्नेश ने बोला कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जिग्ना ने भी बोला कि आप मुझे से कितना प्यार करते हो। तो बोलता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। एक दूसरे को बहुत, एक दूसरे का प्यार था। मगर फिर ऐसा हुआ कि जिग्ना को कुछ बीमारी आ गई, हार्ट की बीमारी आ गई, और हार्ट को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ी। हार्ट का ट्रांसप्लांट का मतलब है कि वो हार्ट बदलकर किसी और का हार्ट उसमें रिप्लेस करे। तो जिग्ना को हॉस्पिटल में ले गए, वो एनेस्थेसिया दे दिया, बेभान हो गई। और फिर जब उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद वो उठी, तो जिग्नेश का फादर और जिग्ना के फादर दोनों शायद उधर खड़े थे, और जिग्ना ने पहली बात बताई कि अरे इधर जिग्नेश क्यों नहीं दिखता है, इधर जिग्नेश दिखाई नहीं पड़ता है क्यों। तो जिग्नेश के पापा ने उसको बोला कि तुझे पता है कि तुम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो बोलती है हाँ। तो बोलता है कि दूसरा पता है कि तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था। तो बोलती है हाँ। और फिर तीसरा उसने जो उसके फादर ने जो जवाब दिया, वो जवाब के बाद सब हंसने लगे थे, सबको हंसी आ रही थी। एंड आई सॉ सर्वांगी वॉज ऑल्सो स्माइलिंग। सर्वांगी यू आर स्माइलिंग राइट। सो वो क्या बोला था पता है? व्हाट डिड ही से? व्हाट वाज द आंसर? हाँ भाई माइक दो, भाई माइक दो, हमारा माइक वाला की सेवा। He gave you his heart, and she started to cry, and the father said that you're mad, he went to the bathroom. He was mad what? Like, she's crazy because she went to the bathroom, he bleeding for that. She started to cry because she thought that he gave his heart to her, and the father said that she's crazy because he went to the bathroom. Those words. He went to the bathroom? Is that what the translation was reading? What was the translation reading? Bathroom? And did you mean bathroom? Pinto? Did you say bathroom? Oh. Maybe I misunderstood then. And I thought that Pintu said so fast, so I was trying to relate that back. And I thought that he went to Swarglok. Because he died, He gave up his heart
and he died, and he went to the heaven. So what is the joke then? Maybe I don't know again, माइक कहाँ गया ना? सजान स्वामी महाराज ने जब वो जिग्ना बाहर आई तो उसने सोचा कि शायद मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, तो उसने मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट में उसने दिया होगा। तो दोनों के मतलब कि वो पेरेंट्स खड़े थे, तो उसने कहा कि जिग्नेश कहाँ पे है? तो वो पिंटू भाई ने कहा कि उसके पापा ने उससे मतलब कि स्टोंटिंग में कहा कि तुमको बहुत ऐसा प्यार ऐसा लगता है जैसे, लेकिन वो तो संडास गया है। सजान स्वामी महाराज। Because I was looking at Melanie, and she did not understand, and she was just curious to find out, what was the last sentence of that joke. And I saw Sarvangi smiling, and I was here in the middle that I did not understand also, And I said, Sarvangi must be knowing better, Eh? But anyhow, So he was in bathroom, not Swarglok, huh? Okay. Okay, we go back to our वचनामृत। ये वचनामृत कार्याणी का 10 है। उसके अंदर भगवान ये वचनामृत कार्याणी के अंदर ये बता रहे हैं, भगवान ये कथा वार्ता कर रहे हैं। जब भगवान कार्याणी में गए थे तो उनकी तबीयत थोड़ी नरम गरम होना शुरू हुई थी, और उसके बाद फिर कार्याणी से स्वामीनारायण भगवान कहाँ गए थे? लोया, और लोया के बाद पंचाड़ा गए थे। तो इधर कार्तिक महीना है, संवत विक्रम संवत 1877 है, और इंग्लिश तारीख के मुताबिक 15 नवंबर है, 1820 की साल है। तो वो टाइम पे स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज गांव श्री कार्याणी के मध्य में वस्ता खाचर के दरबार में पूर्व द्वार के ओरडा पर विराजमान थे, और अपने मुखारविंद के आगे 10-12 बड़े साधु बैठे थे, और 5-6 हरिभक्त बैठे थे, और श्री जी महाराज के शरीर में कुछ बुखार के जैसा दिखाई पड़ता था, और अपने आगे फायर प्लेस रख के वो गर्मी ले रहे थे। वो ठंडी की सीज़न है, कार्तिक महीना है, ठंडी की सीज़न है, और भगवान को कुछ बुखार का जैसा दिखाई पड़ा था। और कार्याणी के अंदर वो पूर्व द्वार के ओरडे में विराजमान थे। जो कोई कार्याणी में गए हो तो उनका थोड़ा सा ख्याल आएगा। और अपने मुखारविंद के आगे 10-12 बड़े साधु बैठे थे, और 5-6 हरिभक्त बैठे थे। सो एट द मैक्सिमम 20 की गिनती होगी। ये ऐसा वचनामृत कम है जहाँ एग्जैक्ट नंबर दिया गया हो। ज़्यादातर क्या बोलते हैं, परमहंस की सभा हुई थी और देश देश के हरिभक्त की सभा हुई थी, मगर इधर एग्जैक्ट नंबर दिया है, 5-6 हरिभक्त और 10-12 बड़े साधु। सो भगवान के शरीर में कुछ बुखार था, तो मुक्तानंद स्वामी उधर बैठे थे, और मुक्तानंद स्वामी ने बोला कि हमारी नाड़ी देखो। भगवान ने बोला कि आप हमारी नाड़ी देखो।
मुक्तानंद स्वामी वैद्य का भी अनुभवी थे और नाड़ी देखकर वो कह सकते थे कि क्या तकलीफ हो सकती है। और भगवान बोलते हैं कि हमारे शरीर में कुछ कमी दिखाई पड़ती है। तो मुक्तानंद स्वामी ने नाड़ी देखकर बोला कि महाराज कुछ कमी नहीं, बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। और मुक्तानंद स्वामी का जो कहने का मतलब था वो ये था कि भगवान आप सबके प्राणाधार हो, आधार हो, और आपके अंदर जो कसर होगी तो सारे ब्रह्मांड में कसर होगी। तो मुक्तानंद स्वामी ने बोला कि हे महाराज, अभी अभी सत्संगी को बहुत कठिन समय चलता है, क्योंकि सत्संगी को तकलीफ़ें हैं, व्यवहारिक तकलीफ़ें हैं, शारीरिक तकलीफ़ें हैं और समाज की तकलीफ़ें हैं। तो बहुत कठिन समय चालू हो गया है। और हे महाराज, आप सब सत्संगी के जीवन प्राण हो, तो आपके शरीर में जो कसर है वो ही सब सत्संगी को बहुत कठिन समय है, तकलीफ है। और आप जो बीमार होंगे तो सत्संग में भी बहुत तकलीफ आएगी। ऐसा मुक्तानंद स्वामी ने अपनी भावना बताई। अब हम जानते हैं कि मुक्तानंद स्वामी थे, वो कौन सी चेतना थी? नारद जी की। और मुक्तानंद स्वामी ये बात बता रहे हैं। तो भगवान अब भागवत का एक प्रसंग लेकर बात करते हैं। फिर श्री जी महाराज बोले कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने कितने युग तक ठंडी गर्मी, भूख प्यास सहन करके महातप किया, और ये तप करके भगवान को राजी किया। भगवान ने किसकी बात बताई? नारद जी की। और नारद जी की चेतना कौन थी? तो ये मुक्तानंद स्वामी की बात बताई कि आप मेरे लिए कहते हो कि इतना कसर होने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, मगर आपने तो बहुत तप किया, कितना युग पर्यंत, कितना युग पर्यंत है। एक युग की छोटा सा छोटा जो कड़ियुग है उसका समय है, कोई जानता है कलयुग का कितना टाइम है शास्त्र के मुताबिक? 4,32,000 432,000 years is the life of कलयुग। एंड कलयुग सबसे छोटा युग है। कलयुग से दुगुना कौन सा युग है? द्वापर युग। कलयुग उसका बेज लेकर दूसरा युग उसको बोलते हैं द्वापर। द्वा मीन्स 2 times कलयुग। सो कलयुग इज सेंटर, यू नो। कलयुग से मेजरमेंट शुरू हुआ है, सतयुग से नहीं हुआ है, कलयुग से हुआ है। द्वापर युग है वो कलयुग से दुगुना है। सो वो कितने साल का हो गया? 864,000 years। और फिर तीसरा युग का नाम क्या है? त्रेता मीन्स 3। त्रे मीन्स 3। और त्रेता युग की आयुष कलयुग से कितनी है? 3 times। और सतयुग है वो 4 times है। और ये 4 युग को आप एडअप करो तो 10 times हो जाता है। 4, 4 + 3 + 2 + 1 is 10, and the चतुर्युग is 10 times कलयुग। कलयुग से 10 गुना एक चतुर्युग की चौकड़ी है। और ऐसे 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का आधा दिन बनता है, हाफ डे ऑफ ब्रह्मा।
और भगवान इधर कहते हैं कि नारद जी ने कितने ही युग तक टाढ़, तड़का, भूख, तरस सहन करके महातप किया, और वो तप करे भगवान को राजी किया। और आप इस टाइम पे हमारे सामने आकर खड़े हैं, बात कर रहे हैं। तो नारद जी को ही अपनी बात बता रहे हैं भगवान। इस तरह जो विवेकी होता है वो तो जानबूझकर अपने देह इंद्रियों को दमन करके तप करता है। जो विवेकी है, समझ वाला है, वो ऐसा तप करता ही रहता है। हमारे विभा बहन भी तप करते हैं अभी खाने का। इसलिए जो विवेकी साधु है उसको तो देह और इंद्रियों को कष्ट देकर ही जीना चाहिए। तो ईश्वर इच्छा से कोई कष्ट आ जाए तो उसको क्यों दूर करने की इच्छा रखे, ऐसा भगवान का सवाल है मुक्तानंद स्वामी को। फिर आगे भगवान कहते हैं, और उनसे भी आगे जो त्यागी साधु होता है उसको तो अपने मन में ऐसी दृढ़ रुचि रखनी चाहिए कि मुझे देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक आदि लोक के पंच विषय संबंधी विषय सुख चाहिए ही नहीं। और मुझे अभी देह होते हुए भी और देह का त्याग करने के बाद भी बद्रिकाश्रम या श्वेतद्वीप में जाकर तप करना है और भगवान को राजी करना है। वो 1 जन्म या 2 जन्म या 1000 जन्म तक भी तप करना हो तो भगवान को राजी करने के इतना तप करना है। ये दूसरी बात बताई भगवान ने। अब भगवान तीसरी बात बताते हैं कि और जीव का कल्याण तो इतनी ही बात में है। जीव का लिबरेशन, कल्याण एक इतनी ही बात में है। क्या? कि प्रगट प्रमाण ऐसे श्री कृष्ण नारायण, उनका ही किया हुआ सब होता है, मगर काल, कर्म, माया आदि किसी का किया हुआ कुछ नहीं होता है। उसी तरह भगवान के अंदर एक कर्तापन ही समझे, वो ही कल्याण का परम कारण है। भगवान को ही कर्ता माने, वो ही कल्याण का परम कारण है। और भगवान को जो कर्ता मानेंगे तो स्वामी सेवक भाव ऑटोमेटिक आ जाएगा। भगवान को ही कर्ता मानते हैं तो स्वरूप निष्ठा ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। और हरिप्रसाद स्वामी जी भी कहते हैं कि कर्ता हर्ता मानना मीन्स आपकी साधना 80% तो कंप्लीट हो गई। भगवान को कर्ता हर्ता मानते हो तो 80% आपको मिल गया, बाकी का 20% बाकी की जो भी 4-5 साधना है उसका गिनता जाता है। तो भगवान भी इधर कहते हैं कि एक कर्तापन ही समझना वही कल्याण का परम कारण है। और जो तप करना वो तो भगवान की प्रसन्नता का कारण है। 2 चीज़ बताई भगवान ने, एक कल्याण, और कल्याण के लिए क्या बताया? भगवान को कर्ता हर्ता मानना। तो आपका कल्याण हो गया, आप भगवान के पास पहुंच गए, मगर उधर आपके ऊपर भगवान राजी है ऐसा कब पता चलेगा? तो आप तप करके गए हो कि नहीं। कर्ता हर्ता मान के गए हो तो 80%, मगर तप किया है तो भगवान प्रसन्न है, भगवान राजी है। तो 2 चीज़ है, एक कल्याण, भगवान के अक्षरधाम में जाना उसको कल्याण कहते हैं, और दूसरा उधर भगवान की प्रसन्नता मिले, वो तप से मिले तो दोनों काम हो जाए। तो बोलते हैं तप जो करना हो तो भगवान की प्रसन्नता का कारण है। और वो तप के अंदर जैसे राधिका जी और लक्ष्मी जी भगवान से प्रेम लक्षणा भक्ति से भाव रखते हैं, ऐसा भाव रखना है, तप करना है। तप का मतलब ही है तपाना, गर्मी पैदा करना है। बाहर से करो, अंदर से करो, मगर गर्मी पैदा करो। हमारे इंडिया में ऐसा पंचाग्नि का भी तप बोलते हैं। पंचाग्नि का मतलब है
4 प्रकार का 4 दिशाओं से गरम गरम हवा का अग्नि आए, या तो चारों ओर लकड़ियाँ जलाकर गर्मी पैदा करे और उसके बीच में बैठाए, और ऊपर से सूर्य के ताप की गर्मी आए, उसको पंचाग्नि कहते हैं। 5 टाइप्स ऑफ फायर, हीट। तो तप का मतलब ही है कि ताव आ जाए, गर्मी आ जाए। और भगवान कहते हैं कि वो उस भाव से तप करना है कि जैसे राधिका जी और लक्ष्मी जी को भगवान के साथ इतना प्रेम था, ऐसी प्रेम भावना से भक्ति करना है। और जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो भी वो 4 अंक की कल बात बता रहा था ना, उसके अंदर जो उपासना है उसका दूसरा अंग है भक्ति, महिमाए युक्त भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, वो उपासना का अंग है। और आज्ञा का अंग है आत्मा के भाव में रहने का। हम जो आत्मा के भाव में रहे वो आज्ञा है। तो आज्ञा और उपासना ये 2 चीज़ भक्ति और आत्मनिष्ठा में आ जाता है। और भगवान कहते हैं कि जो तप न करे और भगवान को ही सब करता हरता जाने, तो भी जन्म मरण के दुख से जीव तर जाता है, पार हो जाता है, मगर तप किए बिना जीव पर भगवान का राजीपा नहीं मिलता है। तो भगवान बोलते हैं एक तो तर जाओ समुद्र को, संसार रूपी समुद्र को, वो तो भगवान को करता हरता माना है इसलिए तर जाओगे। किसी और को करता हरता नहीं माना है, काल को, कर्म को, माया को, प्रकृति को, स्वभाव को, और उनको जो करता हरता माना है तो फिर संसार के चक्कर में उसमें रहोगे। तो भगवान को करता हरता माना है, आपका कल्याण हो गया, मगर कल्याण के ऊपर भगवान की प्रसन्नता कब मिलेगी? तो तप करने से। तो तप किए बिना भगवान की प्रसन्नता नहीं मिलती है। फिर एक बात और आगे बताते हैं, और जो जीव भगवान को सर्व करता हरता नहीं जानता है उसके जैसा कोई पापी नहीं है। भगवान ने चौकड़ी लगा दी। जो कर्म पर मानते हैं, माया पर मानते हैं, प्रकृति पर मानते हैं, काल पर मानते हैं, वो सबको पापी बना दिया। और गोहत्या, ब्रह्महत्या, गुरुस्त्री का संग और ब्रह्मवेत्ता सदगुरु का द्रोह से भी ये ज़्यादा पापी है। भगवान ने ये भी बता दिया कि करता हरता नहीं मानने वाला कितना बुरा है। और भगवान कहते हैं क्यों? कि वो भगवान के सिवा किसी और को, काल कर्म आदि को करता जानता है, इसलिए वो नास्तिक चंडाल जैसा हो, वो उसकी छाया में खड़े भी नहीं रहना चाहिए और भूल में उसके मुख का वचन भी नहीं सुनना चाहिए। भगवान ने कितना उसको टाइटल दे दिया है कि ऐसा जो भगवान को करता हरता नहीं माने और दूसरे को करता हरता माने तो उसकी छाया में भी नहीं रहना चाहिए। और उस टाइम में तो सब हरिभक्त लोग तो भगवान को ही करता हरता मानने वाले थे इन्होंने, मगर भगवान कितने एकदम बोल्ड बात बता रहे हैं। अब जो बात आती है, जो काका जी का प्यारा वचनामृत किस लिए है, अब ये बात इसमें आती है। और जो भगवान के भक्त होते हो वो भगवान के प्रताप से ही ब्रह्मा जैसे होते हैं, शिव जी जैसे होते हैं, सुखदेव जी जैसे होते हैं, नारद जी जैसे होते हैं, और प्रकृति पुरुष जैसे होते हैं, और ब्रह्म जैसे होते हैं, और अक्षर जैसे भी होते हैं, फिर भी वो पुरुषोत्तम नारायण के जैसे होने के लिए समर्थ नहीं है। इतना उनको पावर मिलता जाता है, जैसा तप किया है, जैसी प्रसन्नता प्राप्त करी है, ऐसा उसको पावर दिया गया है। और पावर ब्रह्मा से लेकर भगवान ने अक्षर तक की बात बताई है, मगर वो कोई पुरुषोत्तम नारायण के जैसा होने के लिए काबिल नहीं है। वो तो पुरुषोत्तम नारायण तो सबसे पर है। ऐसी भावना से जो तप करेगा और ऐसी भावना से भगवान को करता हरता मानेगा तो भगवान बोलते हैं कि हम उसके ऊपर राजी हैं। और काका जी भी ये बात बताते हैं कि हमारी भी ये समझ है, हम कितने भी बड़े हो जाए, हम कितने भी प्रख्यात हो जाए, मगर भगवान तो भगवान ही है। हमारे गुरुदेव योगी जी महाराज तो
योगी जी महाराज ही है, हम उसके एक रोम के बराबर भी नहीं है। ये समझदारी का ये वचनामृत है। इसलिए जिसका संग करने से या जिसका साथ शास्त्र सुनने से भगवान की उपासना का खंडन हो जाए और स्वामी सेवक भाव चला जाए, तो वो संग और शास्त्र को स्वपच की तरह तत्काल त्याग कर देना चाहिए। और भगवान ने 8 चीज बताई है, देश काल, संग, शास्त्र, दीक्षा, देवता, ध्यान। उसमें 2 चीज संग और शास्त्र पावरफुल है, उसके बारे में भगवान बोलते हैं कि ये संग से भी हमें स्वामी सेवक भाव की उपासना का खंडन हो जाए तो उसका भी स्वपच की तरह, स्वपच मीन्स चंडाड़, लोएस्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन, उसका हम टच भी नहीं करें, उसकी छाया में भी नहीं रहे, उसी तरह वो संग छोड़ देना चाहिए। फिर वो संग साधु का हो, वो संग कोई ऐसे देवता का हो, कोई संग ऐसे उससे भी ऊपर कोई किसी का हो, या जो भी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। और दूसरा, ऐसा शास्त्र की बात बताई, ऐसा शास्त्र भी जो हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। फिर वो धार्मिक शास्त्र हो या कुछ भी हो, उसको दूर से ही नमस्कार करके छोड़ देना चाहिए, या तो नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। भगवान ये बताते हैं, स्वपच की तरह तत्काल त्याग कर देना चाहिए। तो ये बात अब तक इधर आई, और काका जी को ये वचनामृत इसलिए अच्छा है कि उसके अंदर स्वामी सेवक भाव का पूरा वर्णन है, और स्वामी सेवक भाव नहीं किया है तो उसका पूरा खंडन भी है। जो स्वामी सेवक भाव से नहीं जीता है, जो स्वरूप निष्ठा से नहीं जीता है, जो उपासना में नहीं रहता है, तो वो स्वामी सेवक भाव नहीं रख सकता है। तो ये वचनामृत है, उपासना का वचनामृत है। फिर बाकी की और 2-3 सवाल आते हैं मुक्तानंद स्वामी के, वो साइड के सवाल है, मगर उसको भी पढ़ लेते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि ये महाराज, जो भक्त सुंदर वस्त्र, अलंकार और अच्छे प्रकार के भोजन आदि वस्तु लेकर भगवान की सेवा करते हैं, और वो भी भगवान को राजी करने की इच्छा करते हैं, और आप तो तप करने से, तप का मतलब से छोड़ना भगवान राजी हो जाए ऐसा कहते हो, तो तप के बिना ऐसी सेवा करने से राजी करे, उसमें क्या तकलीफ है? हमारे शंकर भाई का प्रवेश हो गया मुक्तानंद स्वामी में कि भाई स्वरूप निष्ठा की बात करते हो, फिर सर्वदेशीयता को कोई पकड़े तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर्वदेशीयता तो अच्छी चीज़ है, सबके अंदर अच्छे गुण है, वो लेने का तो अच्छा है, मगर स्वरूप निष्ठा में ही सर्वदेशीयता है, उसको देखने की टेक्निक चाहिए। स्वरूप निष्ठा का मतलब है कि भगवान ही सर्व करता हरता है, भगवान में ही सब चीज आ जाती है, तो भगवान को ही सब जगह पे देखे। तो जैसे बापू वो 2 स्टेप बताते हैं, काका जी का जो सिद्धांत है, टू सी सेल्फ इन ऑल इन सेल्फ एंड ऑल एज सेल्फ। अपने आत्मा को ही सब जगह पे देखो, आत्मा का ही सब में हमारे अंदर भाव लाओ, और सब ही आत्मा रूप है ऐसा मानो। और वो किंडरगार्टन का स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। और पीएचडी का स्टेज भी क्या आता है कि इट इज टू सी गॉड इन ऑल इन गॉड एंड ऑल इज गॉड। जिसको आपने स्वरूप निष्ठा पक्की की है, वो ही भगवान को सब जगह में देखो। जैसे तुलसीदास बोलते थे, सिया राममय सब जगह जानी, सीता और राम का ही मैं सब जगह दर्शन करता हूँ, या तो राधा और कृष्ण का सब जगह सब के अंदर दर्शन करता हूँ, या तो स्वामी और नारायण का सब जगह पे दर्शन करता हूँ। ऐसा जो
हाईएस्ट लेवल का भाव आएगा तो सर्वदेशीयता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आई है स्वरूप निष्ठा में से, आई है मेरे प्रभु में से, मगर वही प्रभु की भावना सबके अंदर आएगी। और फिर उसका ही एग्जाम्पल जब कल बात बता रहे थे कि जो घर में नई बहू आई है, नई वाइफ आई है, वो भी अपने हस्बैंड को लेकर सबके साथ ऐसी सर्वदेशीयता रखेगी, मगर हस्बैंड के साथ की जो स्वरूप निष्ठा है उसके अंदर में कोई फेरफार नहीं करेगा। वो तो हस्बैंड ही रहेगा, मगर हस्बैंड को लेकर बाकी के सब मेरे हस्बैंड के प्यारे हैं, उसके साथ भी मैं उतना ही प्रेम भाव रखूं, भेदभाव नहीं रखूं, वो ऑटोमेटिक भी वो सर्वदेशीयता आ जाती है। मगर उसके अंदर फर्क है, हस्बैंड तो हस्बैंड ही है। जैसे जिसको स्वरूप निष्ठा पक्की हुई है, जिसने अपने भगवान को भगवान माना है, गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामीनारायण भगवान को भगवान माना था, और वो लेकर सबके साथ वो ऐसे भाव से जीते थे, मगर बाकी का एक डिफ्रेंशिएशन भी दिखाई पड़ता था कि वो मेरा जैसा सुखी हो, वो मेरा जैसा आनंद लेवे, इसलिए गुणातीतानंद स्वामी जो भी था उसको उधर आगे ले जाने के लिए उसको सत्संग में जोड़ते थे, कथा वार्ता करके उसको आगे ले जाते थे, और वो सर्वदेशीयता ज़्यादा मैच्योर होती थी। फिर उसमें ऐसा नहीं होता था कि वो एक देशस्थ हो जाएगा। भगत जी महाराज भी सर्वदेशीय थे। भगत जी महाराज के अंदर, कुत्ते के अंदर भी वही भाव था जो स्वामीनारायण का तिलक करके आया, तो वो सर्वदेशीयता था। और हमारे बापू भी किसी को सर्वदेशी बोलते थे। कौन था सर्वदेशी? सर्वांगी। तो जिसकी लड़की सर्वदेशी तो उसका माँ और उसका बाप सर्वदेशी होना चाहिए। राइट। तो ये सर्वदेशीयता और स्वरूप निष्ठा के अंदर सिक्का के दो साइड की ही बात है, मगर स्वरूप निष्ठा से सर्वदेशीयता आएगी, वो ज़्यादा मैच्योर होगी। सर्वदेशीयता से स्वरूप निष्ठा लाना मुश्किल पड़ेगी। उसके अंदर इतना फर्क है। और उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई वेश्या है, उसका जो भी कस्टमर है वो सर्वदेशीय है सब, उसको लेकर वो किसी को एक को हस्बैंड नहीं बना सकेगी, उसके साथ उसका हस्बैंड का व्यवहार नहीं रहेगा। वो तो वेश्या की वेश्या ही रहेगी। इसलिए कई कई जगह पे भगवान उसकी भक्ति को वेश्या की भक्ति की कंपैरिजन से बात करते हैं इन्होंने। तो सर्वदेशीयता से स्वरूप निष्ठा में आने में ज़्यादा हार्डशिप है। उसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकती है। वो जेतलपुर की वेश्या थी, वो आ गई, भगवान के ग्रेस से आ गई उन्होंने, मगर वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। और जो स्वरूप निष्ठा वाला है, उसको स्वरूप निष्ठा होने से सर्वदेशीयता आना बहुत आसान हो जाता है। जैसे काका जी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि लव इज गॉड, प्रेम भगवान है। काका जी बोलते हैं नहीं, गॉड इज लव। लव इज नॉट गॉड बट गॉड इज लव, देयर इज ए डिफरेंस। लव तो सारी दुनिया करती है मगर नरक में जाती है भाई। मगर जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान का प्रेम फिर वो भक्त पर उतरता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो देयर इज ए डिफरेंस, उसमें फर्क पड़ गया। तो इधर भी मुक्तानंद स्वामी एक दूसरा सवाल पूछते हैं कि कोई भक्त अच्छे वस्त्र, अलंकार, अच्छा भोजन सब भगवान को देवे और उससे भगवान राजी हो,
वो बात तो आप बताते ही नहीं हो। तप करने से ही भगवान राजी हो ऐसा बताते हो। तो ऐसी सेवा करे उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा खाना खिलाए भगवान को, अच्छे कपड़े पहनाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान बोलते हैं कि अच्छे अच्छे पदार्थ से भगवान की भक्ति करे, मगर वो जो निष्काम भाव से करे, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करे, तो वो ठीक है। इधर भगवान ने निष्काम भाव की बात बताई। कल हमने बताई थी 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तमोगुण से ऊपर अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से ऊपर अच्छा सत्वगुण है, और 3 गुण से भी ऊपर अच्छा निर्गुण भाव है, गुणातीत भाव है। और हम सब सोचते हैं, हम सब इच्छा रखते हैं कि हम गुणातीत बने, मगर गुणातीत से भी ऊपर भगवान बताते हैं निष्काम भाव है। और इसलिए स्वामी की बात में है कि मंदिर की सब क्रियाएं निर्गुण हैं मगर निष्काम नहीं है। निष्काम करेंगे तो ही भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। और इधर भी भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से वो अच्छे अच्छे पदार्थ की सेवा भक्ति करके करे तो अच्छा है। निष्काम का मतलब क्या है कि मंदिर में कोई रसोई बनाने वाला है और जलेबी बना रहा है, और जलेबी या तो वो मोहन थाल क्या बोलते हैं हर्षा बहन, मोहन थाल ना, वो मोहन थाल बना रहे हैं। फिर देरानी और जेठानी टेस्ट करेंगे भी कितना टेस्टी हुआ है कि नहीं। भाई टेस्ट करने में तो थोड़ी एक चम्मच चाहिए, नहीं एक बड़ा बाउल तो नहीं चाहिए ना। मगर बाउल लेकर जो टेस्ट किया है तो निष्काम भाव नहीं आया है। वो उसका स्वाद, उसका टेस्ट, वो खाने की इच्छा, वो कामना आ गई। ऐसे भगवान के लिए भी हम कुछ करेंगे और ऐसा नक्की करेंगे कि ये लाडू में से एक भी लाडू कम होने वाला नहीं है, भगवान को थाल में धराएंगे तो ये हमारे लिए ही आने वाला है, तो निष्काम भाव नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि पदार्थ की जो भी भक्ति करो, अच्छे अच्छे पदार्थ की, मगर वो निष्काम भाव से करे और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करे। देखो आगे भगवान की प्रसन्नता की बात बताई, तप करने के ऊपर भी भगवान की प्रसन्नता मिलती है। तो ये तप से करे, तप के भाव से करे। जैसे तप का भाव क्या, योगी जी महाराज सारी उम्र तक सब रसोई बनाते थे, उनको बादाम पूरी बनाने को आती थी, मगर कभी भी वो बादाम पूरी खाई नहीं। योगी जी महाराज ने महापूजा में, सुबह की महापूजा में बादाम पूरी आती थी, लाते थे, मगर वो सबको बांट देते थे, वो नहीं खाते थे। वो तप था। और हमारे तो प्रसाद में आएगी तो हम बोलेंगे हम पहले खा लेते हैं भाई। कैसी है, अच्छी क्या नहीं है, और अच्छी नहीं है तो दूसरों को बोलेंगे भाई खा लो, पूरी करो। ऐसा नहीं ओके। ना એવું नहीं, अच्छी नहीं हो तो भाई फेंक देते हैं, नहीं खानी चाहिए। मगर भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से करी हुई सेवा केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हो तो वो ठीक है। मगर वो जो अपने के लिए भी भगवान की प्रसादी जानकर वो पदार्थ के अंदर लोभ आ जाए और भगवान को छोड़कर वो पदार्थ के अंदर प्रीति करे, तो वो पदार्थ को के भोग भोगता हुआ वो विषय होकर भ्रष्ट हो जाएगा। और ये बात है, तप के अंदर ऐसा बात नहीं आता है। तप करेंगे तो तप में तो ऐसा नहीं आएगा भाई है कि हाँ तब बड़ा अच्छा लगता है, मैं 1 साल और ज़्यादा करूँ भगवान प्रसन्न हो जाए फिर भी। इसलिए जो त्यागी भक्त है उसको तो भगवान को ही सर्वकर्ता जानकर तप करके ही भगवान को राजी करना और राधा जी और लक्ष्मी जी की तरह भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करके भगवान को भजना, वही हमारा सिद्धांत है। फिर वापस भगवान वही रिपीट करके मुक्तानंद स्वामी को बता रहे हैं कि उपासना, कर्ता हर्ता और तप, यही हमारा सिद्धांत है।
अब ब्रह्मानंद स्वामी सवाल पूछते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा कि ये महाराज, हमारा ये लोक में और परलोक में अच्छा हो वैसा कहो, क्योंकि हम तो तप करने में इतने कामयाब है नहीं। ब्रह्मानंद स्वामी का पेट सबसे, संतों से सबसे ज़्यादा पेट था ना भाई, तो पेट ज़्यादा कैसे होगा? तप करने से होगा। और ब्रह्मानंद स्वामी के मंडल में राजाधिराज की रीत चलती थी। उसके प्रारंभ में नहीं खाना तो भी आ जाता था, जैसे बापू का देखो इन्होंने कहीं भी जाएगा उपवास नहीं। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने बोला कि ये महाराज, हमारा ये लोक और परलोक के अंदर अच्छा हो ऐसा कहो, क्योंकि हमारे से तो ये होता छूटता नहीं है। इन्होंने कोई है ऐसा इधर भी? हाँ विभा बहन अच्छा। तब भगवान ये बात बताते हैं। अब भगवान का जवाब क्या होगा बोलो? ब्रह्मानंद स्वामी ने सवाल पूछा कि हमारा ये लोक या परलोक और परलोक दोनों में कल्याण हो ऐसी बात बताओ। उसका मतलब है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करो भगवान है, ऐसा है ना? तो भगवान ने क्या जवाब दिया होगा? तो चाल है हमने। हमारे विभा बहन बोलते हैं भगवान के भक्तों को खिलाओ फिर खाओ तो चलेगा, मगर इतना ज़्यादा मत बनाओ कि आपके लिए खाने का बच जाए। भगवान के भक्तों के लिए हो इतना ही बनाओ तो चलेगा नहीं है? फिर भक्त देह वापिस में तो अलग बात है, मगर अपने लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बनाओ। में जो भगवान का क्या जवाब है? भगवान ने बोला कि ये जो हमारा सिद्धांत है, जो हमने जो बात बताई पहले, वो ही ये लोक में और परलोक में सुखी होने का परम हेतु है। नो कॉम्प्रोमाइज जो ये हमारा सिद्धांत है वही पकड़ो। ब्रह्मानंद स्वामी आए या कोई आनंद, दूसरा आनंद आए, मगर एक ही बात है। फिर दूसरा आनंद आए, गोपालानंद स्वामी आए, अलग अलग से भगवान को पकड़ना चाहते हैं कि भाई भगवान कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करो। लूप होल मगर नो लूप होल है। फिर गोपालानंद स्वामी ने बोला कि ये महाराज, त्याग और तप करने में मन में तो ईशक है, हमें त्याग भी करना है तप भी करना है, मन में तो ईशक है, और त्याग और तप करते बीच में कोई विघ्न आ जाता है। आज सोचा कि आज मिठाई नहीं खानी है और मिठाई का थाल आ जाता है, और इतना ही नहीं मगर हमारा हाथ भी विघ्न करता है, हमारा हाथ भी और फिर मुंह भी विघ्न करता है, वो थूक नहीं देता है इन्होंने, और फिर पेट में जाता है वो भी विघ्न करता है, वो भी वॉमिट नहीं करता है इन्होंने। तो विघ्न 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 सब जगह पे विघ्न आता है, क्या करें। फिर से गोपाल स्वामी ने सवाल पूछा कि ये महाराज, त्याग का और तप करने का मन में ईशक तो हो, और त्याग और तप के करने में बीच में जो विघ्न आ जाता है उसका क्या करें, उसके लिए क्या करें। फिर भगवान ने जवाब दिया कि जिसको जिस बात का ईशक हो तो बीच में हजारों अंतराय आए, एक दो नहीं तो भी वो अंतराय का रुकेगा नहीं, उसको ही अच्छा पक्का ईशक वाला मानना चाहिए। देखो, हम 21 साल से श्री रामानंद स्वामी के पास आए हैं, और तब से अनंत प्रकार के वस्त्र, अलंकार, खान पान आदि सेवा करने वाले अनंत भक्त मिले हैं, मगर हमारा मन कोई पदार्थ में जुड़ा नहीं है, क्योंकि हमें त्याग का ही ईशक है, हमारा ईशक त्याग का ही है। और ये संसार में कितनी लेडीज़ है, वो उनका हस्बैंड मर जाए तो उसके पीछे छाती कूट कूट कर रोया करती है,
और कितनी बाई है वो अपने मैरिड हस्बैंड को भी छोड़कर साधु बन जाती है। कितना फर्क पड़ गया भाई। और कितने एक मूर्ख पुरुष लोग हैं, वो अपनी स्त्री मर गई हो तो उसके पीछे रोया करते हैं और दूसरी स्त्री के लिए फिर हाय वोय करते हैं। वो पुरुष ज़्यादा रोता है या तो ज़्यादा चिंता वाला है। और कितने वैरागवान पुरुष होते हैं, वो घर में से अपनी शादी की हुई स्त्री को भी छोड़कर परमेश्वर का भजन करने को लग जाता है। हमारे एक है, हमारा एक है अल्पेश, कहीं गया है अल्पेश? हाँ अल्पेश है हमारा साधुराम है। वो शादी किया है, फिर भी अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि भाई इधर आना है तो दिनकर भाई के घर पे रुकना है तो आना है, हमारे साधक निवास में डेस्प्लेन में जगह नहीं है। ऐसा भी है भाई, देखो है। और वो भी सुबह में बैठकर कितनी पूजा पाठ करता है। हमें भी ऐसा लगता है कि है अरे भाई उनको तो हम नमस्कार करें, हैं उसको हम प्रणाम करें, ऐसा भाव में आकर पूजा पाठ करता है। और वो बापू का सेवक है भाई, इंडिया में बापू की सेवा करके आया है, सर्टिफिकेट पीएचडी का लेकर आया है। और फिर फाइनल पैराग्राफ नंबर 16, इसके अंदर 16 नंबर दिया है और कहते हैं कि हमारा तो वही इशक है और वही सिद्धांत है जो नंबर 1 तप करके भगवान को राजी करना, दूसरा भगवान को सर्वकर्ता हर्ता जानना, और तीसरा स्वामी सेवक के भाव करके भगवान की भक्ति करना। ये 3 बात बताई भगवान ने। उसमें जो स्वामी सेवक भाव की बात है वो दोनों बात उसके अंदर आ जाती है। स्वामी सेवक भाव से वो भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान को कर्ता हर्ता मानेगा ही, और तप ऑटोमेटिकली होगा। स्वामीनारायण भगवान के टाइम में मुकुंदानंद ब्रह्मचारी थे, वो भगवान की सेवा बहुत करते थे और भगवान को उनकी सेवा बहुत पसंद भी थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा तप करता था। उसको कुछ खाने का दिल नहीं था, कपड़े का दिल नहीं था, कोई लेडीज़ का भी कोई भार नहीं था, वो भगवान के तरफ ही जुड़ा रहता था। और मॉनसून सीजन में जब बारिश की सीज़न होती है ना, तब सब नदी तालाब सब भरे पड़े होते हैं, तो भगवान नहाने के लिए जाते हैं और बारिश भी गिरती रहती है फिर भी जाते हैं। तो मुकुंद ब्रह्मचारी एक मटका अपने सर पर लेकर जाता है उधर, तो लोग कहते हैं अरे भाई पानी भरने के लिए मटका लेकर क्या जाते हो? मटका ले जाए तो पानी भरने के लिए होता है ना। नहीं, मुकुंद ब्रह्मचारी उधर कपड़े भगवान के पहनने के लिए कपड़े उसके अंदर डालकर उसको ढांक कर जाता था कि भगवान नहाएंगे तो उधर से इधर खुला कपड़ा लेकर जाएंगे तो वो गीला हो जाएगा, बारिश गिरती है तो वो मटके के अंदर कपड़ा भर देता है, पानी नहीं। और फिर वो लेकर उधर जाते हैं। कितनी सेवा की समझदारी है। इसलिए 3 बात बताई भगवान ने, और उसमें तीनों बात में उपासना की बात आती है, स्वरूप निष्ठा की बात आती है। और भगवान कहते हैं इसलिए आप सब भी हमारे ये वचन को परम सिद्धांत करके मानना, हमारे ये वचन को परम सिद्धांत करके मानना। इति वचनामृतम कार्याणी का 10 हुआ। अब देखो कितना टाइम हुआ, 103 हुआ है। अभी 12 मिनट है, 12 मिनट्स। उसके अंदर ये वचनामृत काका जी को क्यों ज़्यादा पसंद पड़ा, और काका जी की जो उपासना है, भक्ति है, वो हम कैसे समझे और हमारे जीवन में कैसे लाए, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और वो मैं 5 मिनट बात करूंगा और
बाकी की 5 मिनट फिर क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे, किसी को सवाल पूछना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन करना हो। फिर 1:15 को फिर वासुदेव हरे करेंगे। सब खाना आ गया है ना? આવી ગયું છે ને? ઓકે, ભલે ભલે। ये वचनामृत के अंदर जो भी बात बताई गई है वो सब करने के बाद की अवस्था की बात है। जो भी साधन जो हम कर लेते हैं वो साधन करने के बाद की अवस्था की ये बात है। और भी वचनामृतों के अंदर साधनों बताए गए। काका जी को प्रथम का 16 वचनामृत भी बहुत पसंद है। प्रथम का 16 वचनामृत विवेक का वचनामृत है, मगर विवेक है वो साधन है। ऐसा विवेक आएगा तो ही उपासना पक्की होगी, तो ही उपासना में स्वामी सेवक भाव का खंडन नहीं होगा। इसलिए ये वचनामृत की एप्लीकेशन का वचनामृत प्रथम 16 है। प्रथम 16 से भी दूसरा प्रथम 18 का भी वचनामृत है। प्रथम 16 का वचनामृत अंतर की, जो अंदर की इंद्रियों का विवेक है। प्रथम का 18 है वो बाहर की विवेक की, इंद्रियों की विवेक का वचनामृत है, विषय खंडन का, हवेली का। और स्वामी जी दोनों वचनामृत को ज़्यादा बात बताते हैं। मगर जिसको बाहर की इंद्रियों का विवेक हो गया है उसको अब प्रथम के 18 की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। काका जी ये बता रहे थे कि हम सत्संग में इसलिए आए हैं कि हमारा प्रथम का 18 तो पाका होना ही चाहिए, वो तो प्री रिक्विजिट है। और प्रथम का 16 भी फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, जो भी वो बोलते हैं खात मुहूर्त का वचनामृत है, फाउंडेशन का। जो इमारत बनानी है उसके ऊपर फाउंडेशन डालने के लिए ये वचनामृत चाहिए। तो हम दूसरे जो भी वचनामृत लेंगे वो वचनामृत के अंदर या तो कोई ऐसी साधन दशा का होगा, कोई सिद्ध दशा का भी होगा, मगर सिद्ध दशा के अंदर भी वैरायटीज़ के लेवल आएंगे। और ये जो लेवल है वो कर्ता हर्ता मानने का है और भगवान को किसी भी तरह से राजी करने का है। तब करके भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि आप भोजन या कोई पदार्थ भगवान को मत दो, मगर जब देते हो तब सोचो कि इसमें सबकॉन्शियस में मेरा कुछ है, मैं देता हूँ वो उसमें मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है तो वो पूरा नहीं है। नेचुरली हम भगवान को भोजन कराएंगे तो भगवान तो भोजन करेंगे, मगर सबकॉन्शियसली हम भी भोजन तो करने वाला ही है ना। तो थोड़ा खंडन हो गया है। मगर हम ऐसा पक्का करके कि आज मैं भगवान को भोजन कराऊं और आज सारा दिन मैं उपवास करूं, तो उनसे थोड़ा कम हुआ है। योगी जी महाराज भी बोलते थे कि एकादशी के दिन हमें एकादशी करनी है, मगर भगवान को तो पूरा भोजन का थाल अर्पण करना चाहिए। तो जब योगी जी महाराज एकादशी के दिन मंदिर में खाना बनाते थे तो क्या फ्रूट्स काट देकर भगवान को दे देते कि भाई खा लो आज एकादशी है? नहीं, भगवान के लिए पूरा थाल बनाते थे, भगवान को भोग धराते थे, मगर अंदर कोई ऐसा विचार नहीं था कि ये मैं उसमें से लूँगा। वो तो निर्जला एकादशी करते थे। तो ऐसा जो भाव है तो ठीक है, मगर उसके अंदर भी सबकॉन्शियस में थोड़ा और प्रोग्राम भी बच जाएगा कि भाई कल नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा, मगर परसों तो थोड़ा खाऊंगा, बचेगा तो खाऊंगा। थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं भाई, थोड़ा बच जाए, तो उधर भी हम पूरा मार्ग नहीं ले सकते। मगर इधर जो काका जी बता रहे हैं कि स्वामी सेवक भाव की पराकाष्ठा का ये वचनामृत है।
मध्य का 9 है वचनामृत है, अर्जुन की स्वरूप निष्ठा का वचनामृत है। मगर कल बताया था वैसे अर्जुन भी वो स्वरूप निष्ठा में 100% पा नहीं पाया। भगवान थे, भगवान मिले हैं, अपने पास बिठाया, नर नारायण बनाया, मगर फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्वरूप निष्ठा का 100% वो एग्जाम्पल है। मगर ये वचनामृत है कार्याणी का 10, उसके अंदर स्वरूप निष्ठा का टोटल डिस्क्रिप्शन है। और ये वचनामृत के मुताबिक जो हम जिएंगे तो हमारी स्वरूप निष्ठा पक्की हो जाएगी। मगर ये वचनामृत के अंदर भी हम इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं। ये वचनामृत के अंदर भी जैसे गोपाल स्वामी का प्रश्न आया, ब्रह्मानंद स्वामी का प्रश्न आया, मुक्तानंद स्वामी का प्रश्न आया, ऐसे प्रश्न भी हम ला सकते हैं। मॉडर्न टाइम में हम अलग प्रकार के प्रश्न ला सकते हैं। मगर जो प्रश्न आया तो फिर वो वचनामृत का थोड़ा सा एसेंस कच्चा रह जाएगा, पक्का नहीं रहेगा। मगर टोटल ये स्वामी सेवक भाव की भावना का इसको पढ़कर पक्का करेंगे तो जरूर हमारी स्वरूप निष्ठा भी पक्की हो जाएगी, उपासना भी पक्की हो जाएगी, आज्ञा भी पक्की हो जाएगी, संत के साथ प्रीति भी पक्की हो जाएगी, भगवती के साथ सूरत भाव भी पक्का हो जाएगा, सब इसके अंदर आ जाएगा। और उससे भी आगे कि हमारे गुरुदेव काका जी राजी हो जाएंगे। राजी तो काका जी को करना है भाई उन्होंने, तो काका जी का जो प्यारा वचनामृत है उसको ही क्यों नहीं पकड़े और उसके बारे में ही क्यों नहीं हम फोकस करें। और ऐसा फोकस करेंगे तो जरूर काका जी भी हमें ऐसा बुद्धि योग देंगे, ऐसे रूढ़े साधु का संग देंगे। हमको खाने पीने में पक्का रहना है तो पिंटू भाई का संग करेंगे तो खाने पीने का एकदम स्टेडी हो जाएगा है राइट। तो हम भी आज ऐसी प्रार्थना करें काका जी को, पप्पा जी को, स्वामी जी साहेब, सब गुणादि स्वरूपों को, कि हमारा भी स्वामी सेवक भाव पक्का हो जाए, उसमें कोई कमी नहीं आए और हम सचमुच में स्वरूप निष्ठा में नंबर 1 बन जाए हैं। सजानंद स्वामी महाराज की जय, आज के आनंद की जय जय जय। तो अब 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट का कोई सवाल है? हाँ जी, हमारे भावेश भाई ने हाथ ऊंचा किया। ओ, सवाल नहीं था, वो स्ट्रेच कर रहे थे, मैंने सोचा भी सवाल आ गया। किसी को पूछना है? एनीबडी वांट्स टू से एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ, कौन? पूनम बेन, माइक दो, एंड देन अनुआ जी। सजानंद स्वामी महाराज ने जय, काका जी ने जय। दिनकर दादा, अगर हम रोज़ फ्रूट भगवान को ऑफर करते हैं तो एकादशी के दिन भी वो करेंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मैं वैसा ही करती हूँ। हमारे पूनम बहन का सवाल है, एकादशी के दिन भगवान को फ्रूट अर्पण करे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? Because I do that on daily basis also. Because she does that every Ekadashi. अच्छा सवाल है। सदानंद स्वामी महाराज ने। We had another question from Anwaji also. Anwaji, you had raised your hand? Oh, another question you have? Anyway, could you, Jay Swaminarayan, Uncle, could you clarify Svavadeshia? Sarvadeshiya? Uh-huh.
And its relationship to Swarupanishta, you said one, like two sides of the same coin? Right. And I kind Swarup of, Nishtha. Swarup Nishtha and Sarvadeshiyata are the two sides of the coin. Why don't you first get a chance to read Gadra middle 9? Gadra number 2, 9 Vachanamrut. Then we will discuss, so you will get a little better picture. Huh? Gadra second, middle 9. What is the title? conviction of God, oh, sorry. Conviction of God, realizing God to be like other avatars is blasphemy. Right. That is called Swarup Nishtha. That whole title means Swarup Nishtha. So you can read that first, then we will discuss. Okay. If we get chance here, otherwise we will discuss, in our sabha. Huh? All right, thank you. Okay. Anybody else? Okay. Viva Ben has question. Or whatever, કેમ પેલો બંધ લાગે છે? આપણે છેલ્લાનું છેલ્લું સોળાની સત્સંગ એમ કે ભગતજી મહારાજને સોળાની સત્સંગ થયો. ઇઝ ધેટ સેમ થિંગ એઝ ધીસ આપણે જે આજે વાત કરી સ્વામી સેવક ભાવ અને છેલ્લાનું છેલ્લાનું 39મું જીવમાં સત્સંગ સોળાની સત્સંગ જીવનો સત્સંગ. Is that the same thing? એ છેલ્લાનું છેલ્લું સોળાનીનું છે. છેલ્લાનું છેલ્લામાં સોળાની નથી. એ તમે મને વાંચીને કાઢીને બતાવજો ને. પણ જે સોળાની સત્સંગ છે એની અંદર ચાર આનીના 4 ભાગ પાડેલા છે. એક સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોનો, બીજો અંદરની ઇન્દ્રિયોનો, ત્રીજો અંતઃકરણનો, ચોથો જીવનો, એવા 4 વિભાગ પાડેલા છે. એ રેફરન્સ છે. એટલે જીવનો જે સત્સંગ જે ભગતજી મહારાજને હતો, દેટ ઇઝ same as this. Okay. Yes. Thank you. હાજી ચાલો જય સ્વામિનારાયણ. જીવના સત્સંગ હજુ મારા કરજો. ચંદ્રકાંત બહેનો ચેપ્ટર બાકી છે પ્રારબ્ધનું, કંઈક ટાઈમ કાઢીને વાત કરીશું.